also. Very good, Aditri. Okay. See, what happens? अगर आपको, if you want to take some games or a movie from another system to your system, तो आप वो कैसे लेते हो? How do you take that? You take that from your pen drive, your CD, your DVD, or your hard. You take these 4 things. ठीक है? So इसका मतलब which are the storage devices? Storage devices are CD, DVD, and pen drive, hard disk, many more. They all are the storage devices. Understood? ठीक है? This we have studied in class 3 also, but there was only some portion ki what are storage devices. ठीक है? But now you will get the whole chapter. अब आपको एक पूरा चैप्टर मिलेगा. The chapter name is storage devices and memory. Storage and memory devices. ठीक है? See, first of all, I'll show you the book. You are having this type of book. Okay? You are having this type of book. Okay, when you come to school, then you have to take. But right now, I'll show you the chapter कि उसमें क्या है. Okay? So now, first of all, we'll start reading. ठीक है? हम पहले reading. Okay, Shresh has given answer pen drive. Yes, very good. Ahana has also given answer. Siddhim has given. Very good, all of you. Very good. Okay. So now we'll start reading. I'll show you the chapter. See, our first chapter is what? Storage and memory devices. Okay. So first of all, who will start read? Arush Kumar. Yes, ma'am. Everyone will get chance. Okay, Shashwat? Everyone. Yes, Arush. Start reading from here. Children, you all know data, First of computer, all, this heading. What is the heading? data and information. Yes. Now in the chapter storage and memory devices, your first topic is data and information. ठीक है? This you have studied in previous class also कि data क्या होता है और information क्या होती है. ठीक है? First of all, we'll revise this all thing. Then we'll move further. Okay? Okay, Arush. Now start reading. Children, you all know that a computer cannot work on its own. We need to enter certain set of characters and instructions into the computer to make it work. This set of characters, like alphabets, digits, or special characters that represent facts or figures, is known as data. When this data is processed by the processing unit, i.e. CPU, it is known. Sit down. Don't lay on your bed. Sit or hold it properly. Yes. Now start reading. And information. Therefore, we can say data is a collection of raw facts and figures, and processed data is known as information. Children, you should remember that unprocessed data is meaningless, but when data is organized and converted into meaningful information, it becomes useful. Good, very good. Okay, now see, by this para, who can tell me आपको क्या समझ आया? After then I'll tell you. Okay, who will tell me? Ahana. Yes, Ahana. Tell me what is data and information? Ma'am,
Ahana, you're not audible. Okay, no problem, Ahana, no problem. Am I audible to you? Yes, ma'am. Okay, no problem. You can set your internet connection. Then I'll get back to you. Till then, who will answer? Okay, Arav Agrawal. Arav, can you tell me what is data and what are information? Can you give me any example? Or can you explain me क्या होता है? Data is a Okay, I'll explain you. I'll explain you. See, data क्या होता है? Data is अगर आप कोई word बोलते हो, जैसे I spoke, okay, the spelling of Arav only, ठीक है? मैंने बोला double A, ठीक है? Double A, are you getting कि double A मतलब क्या हो सकता है? You don't know. So it is what? Data. If I say the whole word, like I'll say double A R-A-V, Arav. It is what? Meaningful? ये क्या हुआ? This is a meaningful word. So what is it? It is information. ठीक है? Now see one more example. Like in your answer sheet, जब आप आंसर करते हो, it is some कभी-कभी ऐसा होता है कि आप स्टेटमेंट तो लिख देते हो पर उसमें कुछ-कुछ चीजें गायब होती हैं. ठीक है? Like you have written this sentence only that a computer cannot work on its own. आपके पास क्या आया कि सपोज आपने ये लाइन लिखी कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, बट उसमें आपने क्या कर दिया? वर्क नहीं लिखा. ठीक है? आपने क्या लिखा? कंप्यूटर कैन नॉट ऑन इट्स ओन. ठीक है? मतलब ये बहुत मीनिंगलेस है. ठीक है? इसमें कोई मीनिंग नहीं है. दिस इज जस्ट द एग्जाम्पल. ठीक है? इसमें कोई मीनिंग नहीं है. सो इट इज व्हाट? डेटा. ठीक है? इट इज व्हाट? डेटा. And if I will say the whole sentence, a computer cannot work on its own, it is what? Meaningful. It is what? Information. जो भी meaningful statement होती है, it is information. जो भी meaningless होती है, it is data. ठीक है? Like in your frame sentence, like in your that rearrangement in English. आप rearrangement करते हो? Rearrangement में you get different words. Different means you get the data. आपको क्या मिलता है? Data. See, suppose एक statement है girl good AI. ये क्या है? ये हो गया data मेरा, क्योंकि मुझे इसे rearrange करना है. The rearranged जो होगा I am a good girl, तो वो क्या होगी मेरी? Information. Getting? If you are getting, do thumbs up, then only I will able to understand that you are getting or not. Okay. See, one more example. See, here it is written like this set of characters like alphabets, digits, or special characters that represent facts or figures is known as data. मतलब in this line this want to say, अगर suppose just now I gave you the example of Arav, मैंने अभी example दिया था like A example दिया था कि double A होगा, तो वो क्या होगा? Data. ठीक है? Now when this data is processed by processing unit, that is CPU, it is known as information.
लाइक आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं, उसको आपने रीअरेंज किया है, इट इज व्हाट, इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है, इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. लाइक सी, I'll give you the example, like suppose right now I give you the statement good I girl am, ठीक है, ये आपका क्या है, डेटा, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ क्या दिए, कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दे दिए, अल्फाबेट्स दे दिए, ऐसे ऐसे दे दिए, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स दिए मैंने आपको, यू वांट टू रीअरेंज, तो उसे आपको क्या बनाना है, इंफॉर्मेशन, दैट इज आई एम गुड गर्ल. Okay, clear? If anyone is not clear, you can ask me again, I'll explain you again. Yes, Shashwat? मैम अगर मैम डाटा उसको बोलते हैं अगर कोई वर्ड या फिर कोई सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, जो एक सिर्फ आपको चीजें दी है कुछ, मैम इंफॉर्मेशन वो होता है जो मतलब पूरा मतलब वो पूरा सेंटेंस और वर्ड बना सके. हाँ, विच इज मीनिंगफुल, जो एक मीनिंगफुल डेटा होता है, जो मीनिंगफुल बना देता है, मीनिंगफुल डेटा, वो क्या होती है, हमारी इंफॉर्मेशन, ठीक है. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया रीअरेंजमेंट का, जो ऊपर एक लाइन दी थी, उसकी उस डेटा को आपने क्या किया, प्रोसेस ही तो करा, ठीक करा, तभी तो वो इंफॉर्मेशन बनी. तो कंप्यूटर में क्या होता है, इफ यू हैव एनी कैरेक्टर, जैसे कोई अल्फाबेट है, कोई स्पेशल कैरेक्टर है, कुछ भी है, वो क्या होता है, डेटा, और इसी डेटा को कौन प्रोसेस करता है, हमारी प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, सीपीयू. सो वो सीपीयू क्या करता है, आपको उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कर देता है. आ गया? यस मैम. Now is there anyone who is having any problem? Can yes, Ahana? Ma'am, we have to make computer notebook. Ahana, you are not audible. I'm not able to. Ma'am, we have to make computer notebook. Yes, this time we'll make. Okay. Okay. So now I guess you all are clear. But then also I'm waiting for a minute that if you are having any problem, can raise your hands. I'll repeat it. Okay, I am having a look. Yes, yes, Vehan. Yes, Vehan. Tell me. Ma'am, data is clear. Ma'am, what? Ma'am, information. इंफॉर्मेशन कुछ नहीं, जो डेटा होता है ना, डेटा में हम क्या करते हैं, एक एक चीज को लिखते हैं, एक एक सिंगल वर्ड को लिखेंगे, ठीक है. Ma'am, data is ma'am meaningless. हाँ, इट इज मीनिंगलेस एंड इंफॉर्मेशन इज व्हाट, मीनिंगफुल. जो उसे मीनिंगलेस, वो मीनिंगलेस डेटा को हम कन्वर्ट कर देते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के हेल्प से, वो क्या बन जाती है, मेरी इंफॉर्मेशन. Okay, ma'am. आ गया विहान? Yes, ma'am. Okay. Now any other? Okay. Yes, Siddhant, you are raising your hand. No. It's clear? Okay. So now we'll continue further. Fine. So now what is there? Now we have this example from our day-to-day life. Means ये आपको डेटा और इंफॉर्मेशन के एग्जाम्पल्स देगा डे टू डे लाइफ के, ठीक है ना. हु विल रीड? सिद्धम जायसवाल. Wait, I have asked you ना, wait. I'll give you the chance. No problem. अगर आज किसी को चांस नहीं मिली तो नेक्स्ट टाइम बहुत बड़ा चांस. Yes, ma'am. Yes, start reading. Your father bought a clothes parties
from the market and give it to the tailor to stitch and cut a pant shirt out of it. In this example, cloth can be considered as data and shirt pant can be considered as information. The cloth and the raw from is not useful unit. It gets converted into subject. Good. Okay. See, just now I gave you the example of that statement. ठीक है? Yes, very good, Vihan. You are having the book. Good, Vihan. Good. Fine. You can see from it. ठीक है? Now see. What is it? अगर मैंने अभी आपको उसका एग्जाम्पल दिया था रीअरेंजमेंट का, ठीक है, सेम इज दिस. अगर वो आपके पास स्टेटमेंट होता अनअरेंज, जैसे मैंने कहा था एम गर्ल गुड आई, ये कोई मीनिंगलेस था, इसका आपको कोई मीनिंग ही नहीं मिला. ठीक है. सो इसी तरह जब मैंने उसे कन्वर्ट करा आई एम गुड गर्ल, तभी तो आपको इंफॉर्मेशन मिली कि व्हाट इज इट, तभी तो आपको इंफॉर्मेशन मिली. सो it is like now your father bought a cloth piece. ठीक है. Suppose your father, आप अपने पापा को डिपिक्ट करो या अपने पेरेंट्स को डिपिक्ट करो. सी, आपके पापा एक क्लॉथ लाया आपके लिए, ठीक है, कि you can give it to tailor to stitch your something. क्या वो खाली क्लॉथ आपके किसी काम का था? किसी काम का नहीं है ना वो क्लॉथ. क्या करोगे उस क्लॉथ का? वो तो पड़ा रहेगा कहीं पे. सो दैट इज योर डेटा. क्लॉथ इज योर डेटा, क्योंकि वो आपका अभी कोई यूज नहीं है. जब तक वो स्टिच नहीं होगा उसका कोई यूज नहीं होगा. सो इट इज डेटा. बट जब हमने उसकी प्रोसेसिंग कर ली, उसको स्टिच कर लिया, इसमें प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? स्टिच. उसमें कंप्यूटर में क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को. इसमें प्रोसेस कैसे हो रहा है? स्टिचिंग होके, है ना. तो वो स्टिच होगा तभी तो आपके वो पहनने के लिए बनेगा. What you have to wear. So the shirt pant is your information. ठीक है. क्लोथ क्या हो गया आपका? डेटा. फिर ये क्या हो गया? प्रोसेस. और शर्ट पैंट आपकी क्या हो गई? इंफॉर्मेशन. ओके. Who is not getting can raise your hand. I'll come to you and फिर मैं आपको दोबारा से बता दूंगी. ओके. ये शाश्वत. Ma'am, I can read. हाँ, अभी मैं आपको बोलूंगी. वेट. सिद्धांत, sit properly. सिद्धांत अग्रवाल. Yes. No problem to anyone. You are not raising your hand. Yes, Sirat. Any problem? No, ma'am. Yes. Okay. Now, okay. Now we'll move further. ठीक है. So now Shashwat. Yes, Shashwat. Start reading. Examples in the context of computers. Yes. Your teacher want to find the highest and the lowest scores from your class. For this, she inputs marks scored by each student in all the subjects in the computer and give the required instruction to it. In return, the computer displays the highest and lowest scores of the class. Scorers कौन होते हैं? जैसे आप सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाए तो यू आर हाईएस्ट स्कोरर. Ma'am, topper and lower. Highest scorers. I'm telling you about scorers. Yes. Continue. Here marks that were fed into the computer represent data.
and the result returned by the computer, i.e. the highest That is. is the highest and the lowest rankers represent information. Okay, good. Wait, Shachar, let me explain. See, अभी जब when we check your notebooks, जब check हो जाती है तो we enter marks. हम marks enter करते हैं, ठीक है. So वो हम क्या देते हैं? Input. वो हम क्या देते हैं? Data. वो हम कंप्यूटर को देते हैं डेटा, ठीक है. नाउ फिर उस डेटा को प्रोसेस कौन करता है कंप्यूटर में? सीपीयू, ठीक है. उस डेटा को प्रोसेस कौन करेगा? सीपीयू. और फिर सीपीयू की ही हेल्प से कंप्यूटर हमें हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोरर बता देगा. एंड द ओवरऑल हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोरर क्या होता है? हमारी इंफॉर्मेशन. गुड. Now, who will read? Alisha. These are the examples to make you understand what are data and information. ठीक है, क्योंकि ये आपके आगे बहुत हेल्प करेगा डेटा एंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि हर जगह आपको आएगा डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन. Alisha, I am not able to see you. Siddhant, everyone turn on your videos fast. Lavanya, Yes, ma'am. start reading this from here. While booking the railway ticket, you provide the details like source station, destination, Yes. date of journey, and the number of persons traveling to the computer. This data is processing by the Processed. computer and you get the rail ticket. In this case, the details like source station, destination, date of journey and number of person traveling represent data, and the ticket which you get represent information. Yes. See, in this also it is being told, अगर आपको टिकट्स बुक करनी होती है, ठीक है, तो क्या करते हो? आप अपना सब डालते हो. सोर्स स्टेशन फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट, डेस्टिनेशन कहाँ आपको जाना है, डेट ऑफ जर्नी कितने लोग ट्रैवल करेंगे, ये मैं इनपुट करती हूँ कंप्यूटर में. फिर सारी डेटा प्रोसेस होती है, ठीक है, प्रोसेस होती है, तभी तो आपको टिकट मिलती है. सारी डेटा जो आप डालते हो वो आपकी टिकट्स पे जाती है. सो वो टिकट्स पे तो तब जाएगी जब आप उसकी डेटा जो आपने इनपुट करी है, आपने जो डेटा दिया है वो प्रोसेस होगा, तभी तो उसको इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है. सो जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो टिकट्स आपको मिली है, वो आपकी किस में आएंगी? इंफॉर्मेशन में, ठीक है. ये सब जो ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन सी डेट को, दैट इज ऑल योर डेटा, ठीक है. नाउ I guess most of you are clear what are data and information. Okay, so now see, Sirat. Yes, ma'am. Start rereading this. From where? From here, data storage units. Data stores units. Storage unit. Okay, ma'am. Into the computer, gets converted into a machine understandable code called machine code. A computer can understand only two states on represented by 0. These two digits 0 and 1 are called binary digits. Binary digits or bits. The data is stored in the computer memory in the form of bits and measured by bytes.
Okay, good. Memories. Wait, Seerat, wait. See, everyone look here where she's reading, because I can stop her anytime and can say anyone. And if you will not tell, then I'll scold you also. So better look here, everyone. मैं कहीं भी किसी को भी बोल सकती हूँ for reading. So now, what is data storage unit? Data storage unit is, see, आप अगर अपने कंप्यूटर में अपना नाम भी डालोगे ना, like सीरत, I am putting the name, I am entering the name सीरत, ठीक है, वो कंप्यूटर में आपको सीरत ही दिखेगा, लिखा हुआ सीरत ही दिखेगा, बट कंप्यूटर ने जो लैंग्वेज ली, कंप्यूटर ने जो वो कोड लिया जो आपने दिया, वो 0 और 1 के फॉर्म में लेता है. क्यों? क्योंकि जो आप ये अल्फाबेट्स टाइप करते हो, ये कंप्यूटर को समझ नहीं आते. कंप्यूटर अपने कोड्स में इन लेटर्स को अपने में एंटर करता है, ठीक है. सो दिस मीन्स हम कुछ भी कंप्यूटर में डालते हैं वो मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट होता है पहले, मतलब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, जिसे हम मशीन कोड कहते हैं, ठीक है. वो मशीन कोड क्या होता है? 0 और 1. क्यों? क्योंकि आप कुछ भी वर्ड डालोगे ना यहाँ से अपने कीबोर्ड से, तो वो कंप्यूटर अपने में 0 और 1 के फॉर्म में सेव करेगा उसे. गेटिंग? Yes, Rehan? Ma'am, next I can read. You can read, but wait. First tell me कि सबको समझ आया कि which language. See, this time you are in class 4th. Fine. So you can get something like, आपको means from this also you can get any fill up also. ऐसा भी हो सकता है. So that's why we are reading the chapter, कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है. Okay, so have you understood? Okay, like this question can come, which code computer understands? What will be your answer? Raise your hand. Which code computer understand? Now I'll ask the students, those who have not given me even an answer. Yes, Shresh. Which code computer? Ma'am, 0. Huh? Ma'am, 0. Code. I am asking about code. 0 and 1 तो yes. But 0 भी तो वही कोड है जो 1 है. तो उस पूरे कोड को क्या क्या कहते हैं? Binary digits. No. Archit? Unmute yourself. Yes, Archit. Tell me which code computer understand. Ma'am, machine language code. Yes, very good. Computer understand machine code. ठीक है? See, in true false it can come. Do computer understand your letters and alphabets? If, like in questions, do computer understand your alphabets or your numbers? If yes, explain how. ऐसे भी आ सकता है. So what will be your answer? Yes, it can understand, but first computer will convert it into machine understandable code. ठीक है? Okay. Now next question can come. Which are machine code that computer understands? Okay, the answer will give me कौन से machine codes हैं जो computer understand करता है. Yes, Rehan. Can you give me the answer? Ma'am, 0 and 1. Yes, the answer will be 0 and 1. Okay? Till here you understood? Okay, now, first of all, yes, many of you given answer. Mudit, Aditri, very good. Yes, Ahana is having problem. She is writing. Yes, Ahana. Yes? Ma'am, Hmm? ma'am, with
which you have said that machine understand the language, that part I don't. And Ahana, you are not audible, beta. I'm not able to hear you. which machine code part I am not understand. See, I can make you understand again. See, कंप्यूटर में हम कुछ भी अल्फाबेट डालेंगे ना, तो वो कंप्यूटर पहले उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. वो अपनी लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज, जो मशीन समझता है. वो मशीन लैंग्वेज क्या होती है? 0 and 1. वो किसमें कन्वर्ट करेगा? 0 and 1 में. अगर आप डी प्रेस करोगे ना, तो वो डी को भी पहले 0 और 1 में अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. फिर वो समझेगा कि जिसने जो डेटा इनपुट कर रही है, एंटर करी है, वो क्या करी है. तब उसे समझ आएगा कि हाँ डी आया है, जब वो अपनी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर. जैसे सपोज सम तमिल स्टूडेंट इज कमिंग. ठीक है, आपको तमिल तो आती नहीं है. अगर कोई बीच में कोई है कि जो आपको तमिल से हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता रहे, तभी तो आपको समझ आएगा ना कि व्हाट अनदर पर्सन इज ट्राइंग टू से यू. So this is just with the computer कि वो अपनी लैंग्वेज समझता है. Understood? If anyone is there, those who have not understood, you can ask me once again. I'll make you understand once again. If you understood, say yes here. Otherwise, say no. If you understood, say yes. And see, from next time, I want no one should turn off their videos. Everyone, turn on your videos because I don't know where are you. Are you listening or not? Vardhan, Pavitra, Aradhya, everyone. Yes, many of you are messaging also. Very good. Okay. Means your first computer session was good. Okay? Means you understood well. ये तो बहुत easy थे. ठीक है? अगर आपको yes, Aditri, you are trying to say something. I was just saying I will not off my video only. Okay. No problem. See, in my next turn, I'll ask the questions or I'll tell that students to read those who have not got the chance this time. Okay? Understood? Okay. Bye everyone. And do read it. I'll send you the PDF. मैं आपको PDF भेजूंगी. Do read that PDF. Okay? Bye. Good morning. Good morning, Lavanya, Arav. Good morning, everyone. Seerat. Yes, you can do thumbs up for good morning, like Arnav is doing. Aditri, good morning. Seerat, good morning, everyone. Open your videos of everyone. Shashwat, Aditri. Siddhim, Archit, Siddhant, Vani, Khushi. Good morning, everyone. Good morning. Now, yes. Can anyone tell me what we are doing today in science? क्या करने वाले हैं आज हम साइंस में? What we are going to discuss?
Aditri, what you are eating? Ma'am is watching everyone. What you are doing? Eating, sleeping, studying. Good morning, Ahana. Good morning, everyone. Shresh is saying quiz. Beta, quiz is over. First chapter, for chapter 2, first part quiz is over. Now today I will teach you the second part of the chapter. Means अभी आपने yes plants trees के plants के क्या what we were discussing about terrestrial plants. Now today we will discuss about aquatic plants. What are kinds of plants? Arav Agrawal, what are the two kinds of plants? Terrestrial plant, aquatic plant. Yes. Now, what are aquatic plant? Anyone? What are aquatic plant? Terrestrial plants to go. Yes. Yes, I am watching you, Hana. Yes. Everyone. Shrestha is raising hand. Yes, aquatic plant. And plant who live in water. Who grows in water means जो जिनका जिनकी habitat बताया था मैम ने. habitat क्या होती है? Natural surroundings in which a plant or animal live. Fine. अभी कुछ plants की habitat तो land थी, अभी कुछ plants की habitat क्या है बेटा? water. अभी वहां पे हम वो पढ़ेंगे. बेटा मिनट, let me share you my screen. Aquatic plant. Yes, everyone. Look at here on the screen and read in your mind. The plants that grows in water are called aquatic plants. The plants that grows in water are called aquatic plants. Means in plants की surrounding क्या होती है बेटा? Very nice बेटा, very nice. The plants that grows in water. Terrestrial plants क्या होते हैं? The plants that grows on land. Everyone is clear? Aquatic plants में कौन से 3 types होते हैं? 3 types are there. Floating plants, fixed plants and underwater or submerged plant. अभी हम one by one इन्हें discuss करेंगे. Lavanya, where are you? I'm not able to see you. Arav, Garg, बेटा sit in one place. Why you are moving here and there? Arav, everyone sit in one place. Yes. Aquatic plants are of how many types? 3 types. 3 types. Floating plant, fixed plant, underwater or submerged plant. कोई मुझे बेटा floating can anyone give me example of floating plant? किसी को कुछ आता हो, याद हो? Anyone have seen plants को plot करते हुए water में? Someone is raising hand. समग्र, yes बोलो. Have you seen? Yes, ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, lotus. लोटस बेटा वेट अ मिनट. कैन यू टेल मी लोटस कौन से टाइप में आता है इनमें से? And floating plant. नो दैट आई विल एक्सप्लेन यू. वेट अ मिनट. लोटस फ्लोटिंग प्लांट में नहीं आता है. एवरीवन. आहाना वेरी नाइस बेटा. 1 1 1 1 1 1. Daman, my voice is not audible to you. I don't know beta, some network issues from your side are there. Everyone, my voice is audible. Do thumbs up. Yes, ma'am. Fine. What are the 3 types? Repeat in your mind after me. Floating plant, everyone. Floating plant, fixed plant, underwater or submerged plant. Everyone repeat. I am watching. Are you repeating or not? Floating plants, fixed plants and underwater or submerged plants. Everyone, read it out on your mind. Floating plant, fixed plant, underwater or submerged plant. मैम किसी को भी अनम्यूट करके सुन सकती हैं. Floating plant, fixed plant, underwater or submerged plant. 3 types are there. Floating plants, fixed plants, underwater or submerged plant.
Yes, ma'am has listened from Ahana side. Fine, everyone. Now we will discuss about what are floating plants. Floating plants कौन से होते हैं जो wait a minute. Yes, this is the PDF here. Yes, these plants. बेटा देखो अभी आपको इधर देखो इधर आपको स्क्रीन पे एवरीवन पिक्चर्स से देखो पहले आप लोग सी द पिक्चर्स हियर दिख रही है आपको आप लोगों ने देखा भी होगा पॉन्ड या फिर आपके आसपास में कोई तालाब होता है पॉन्ड बोलते हैं ना तालाब को उधर की साइड आप लोग देखते हैं कुछ जो ऐसे छोटे 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 प्लांट्स प्लॉट कर रहे होते हैं ऐसे डकवीड इसको बोलते हैं बेटा दैट इज डकवीड ये पी इज नॉट देयर duckweed, water lectus, water hinge. Yes, these plants are light, spongy, and plot on the surface of the water. These plants protect small plants from the heat of the sun. Examples are duckweed, water lectus. Have you seen? आप किसी ने देखा है वो ponds? कोई pond देखा है किसी ने? Anyone? Raise your hand. Have you seen any pond? No one is raising hand. किसी ने देखा हो डकवीड रुद्रांश is raising hand. Yes, रुद्रांश. Yes. रुद्रांश, where you have seen? मैम यहाँ हमारे यहीं पे है एक ओके आपने ऐसे प्लांट वहां पर डकवीड को देखा है प्लांट्स को जो वाटर की सरफेस पे प्लॉट कर रहे होते हैं यस यस दैट आर फ्लोटिंग प्लांट्स अभी बेटा लोटस फ्लोटिंग प्लांट में क्यों नहीं आता दैट आई विल टेल यू अभी नेक्स्ट टाइप है इसका बेटा फिक्स प्लांट्स लोटस एंड वाटर लिली आर फिक्स वाटर प्लांट बट बिकॉज हैव रूट्स विच आर फिक्स टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड जो लोटस और वाटर लिली होते हैं बेटा इनकी जो रूट्स होती हैं ये फिक्स होती हैं पॉन्ड से और जो हमने अभी प्लॉटिंग प्लांट्स पढ़े थे इनकी रूट्स फिक्स नहीं होती प्लांट से सिर्फ प्लॉट कर रहे होते हैं ये वाटर सरफेस पर बट जो लोटस एंड वाटर लिली होता है इनकी जो रूट्स होती हैं एवरीवन इनकी रूट्स बेटा फिक्स होती हैं बॉटम से मींस जो पॉन्ड का जो तालाब का जो नीचे बिल्कुल मिट्टी होगी या सरफेस होगा वहां से बिल्कुल फिक्स होगी फाइन हैव रूट्स विच आर फिक्स टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड हैव अ होलो light stem which keeps the leaves and the flower to plot on the water ये भी देखो आपने जो floating water yes messages are coming let me check Anna ma'am unmute me okay fine I will yes देखो बेटा जो fixed plants होते हैं everyone the fixed plants have roots which are fixed to the bottom of the pond and have hollow light stem जो लोटस एंड वाटर लिली द लोटस और जो वाटर लिली होता है इसकी जो स्टेम होती है स्टेम एवरीवन नो जो ऐसी लंबी लंबी सी होती है स्टेम वो क्या होती है बेटा खाली होती है और बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है उससे क्या होता है जो वाटर जो लोटस और जो लिली होता है वो इजीली वाटर पे ऊपर फ्लोट करता है फ्लोट का मीन्स तैरता है ऊपर फाइन The leaves are broad and have stomata only the upper side. जो इनका स्टोमेटा प्रेजेंट होता है इनकी लीव्स में अपर साइड पर होता है वो अपर साइड से ही ब्रीथ करते हैं फाइन एवरीवन यस अदिति वेरी नाइस शेरविन इज सेइंग आई हैव सीन दी लोटस फाइन बेटा फिक्स प्लांट और फ्लोटिंग प्लांट में डिफरेंस समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस हु विल टेल मी शाश्वत मैम व्हाट फिक्स प्लांट एंड फ्लोटिंग प्लांट्स में क्या डिफरेंस है अभी बताया मैम ने मैम the floating plants float in the water and the fixed plant are fixed in the water fixed to the bottom of the pond yes and fixed plant के एक और वो है जो फिक्स प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होती है मींस चौड़ी होती हैं बहुत ज्यादा दे हैव स्टोमेटा ओनली ऑन द अपर साइड इनका जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ओनली ऑन द अपर साइड यस मैम आपकी वॉइस थोड़ी सी क्रैक हो रही है बेटा दैट इज द नेटवर्क इशू आई डोंट नो व्हाई इट इज क्रैकिंग अभी भी क्रैक हो रही है यस मैम फ्रॉम योर साइड आल्सो
क्या पता आपकी साइड से क्रैक हो रही हो. अर्नावत्री. Ma'am, I am writing the ponds, so you can share it. बेटा I will share you this PDF. Don't worry. मैम will share this PDF to you. अभी आप सुन लो मैम क्या एक्सप्लेन कर रही हैं. ओके अर्नव, दमनप्रीत, ध्रुव. Who will tell me? Yes. जो फिक्स प्लांट्स हैं, फिक्स प्लांट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? लोटस एंड वाटर लिली. एंड फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जांपल्स क्या आते हैं बेटा? डकवीड एंड वाटर लेक्टस. आप ये दोनों याद कर सकते हैं. these names are easy. डकवीड एंड वाटर लेक्टस. देखो अभी आप देखो, ये देखो एक पॉट में देखो ये कैसे वाटर लेक्टस फ्लोट कर रहा है. इनकी रूट्स फिक्स नहीं होती हैं नीचे से. मींस नीचे से इनकी रूट्स फिक्स नहीं होती हैं. वाटर मतलब लाइक जैसे लोटस में होता है, उसकी जो रूट्स होती हैं वो पॉट से फिक्स होती हैं. दैट्स व्हाई इट्स प्लांट. अभी आप सोचो, कैन एनीवन टेल मी? यस, व्हाट आई एम सेइंग, लाइक जब बेटा वाटर या फिर सी है या पॉन्ड है, उसमें जो वाटर होता है उसका फ्लो बहुत ज्यादा होता है या नहीं होता? फ्लो बहुत ज्यादा होता है. तो क्या ये जो लोटस का जो प्लांट है ये सरवाइव कैसे करता है इतने फ्लो में? आहाना. Yes, ma'am. बेटा जो व्हाट आई एम सेइंग कि लाइक अभी मैम ने बताया कि लोटस प्लांट होता है वो फ्लोट करता है water में. फाइन. वाटर का जो बेटा बहाव होता है, मीन्स जब वाटर बहुत ज्यादा स्पीड में फ्लो कर रहा होता है तो ये जो लोटस का प्लांट है तो टूट जाएगा. ये सरवाइव कैसे करता है उसमें? सोचो. उसके पास भी स्टोमेटा होता है. स्टोमेटा तो ब्रीथिंग के लिए होता है बेटा. स्टोमेटा का पर्पस क्या होता है? ब्रीथ करने का होता है. Yes. Who is saying मैम? आई डोंट नो. बेटा देखो, जो लोटस वाला जो प्लांट है मैंने अभी बताया, जो उसकी स्टेम होती है, स्टेम मीन्स जो उसका तना होता है वो बहुत ज्यादा लाइट होता है और होलो होता है, मीन्स खाली होता है. तो जैसे ही जहां जिधर की साइड पानी बहता है, मीन्स जिधर की साइड पानी फ्लो करता है, वो अपने आप को उधर की साइड मूव कर लेता है. इससे क्या होता है? वो मीन्स वो सरवाइव कर लेता है उस फ्लो में. हम जिधर की साइड मूव करेंगे उधर की साइड हम इजीली. यस. Means if the water is going to the right side, it will go to the right side so that it cannot be dead. What you are saying I'm not getting. If the water is flowing to the right side, the plant will also move to the right side. तभी वो survive कर पाएगा. अगर लोटस प्लांट खुद को अपोजिट साइड में कर लेगा फ्लो के, तो क्या होगा? वो टूट जाएगा बेटा. फाइन. वो जो उसकी जो स्टेम होती है लोटस प्लांट की, वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है, या फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं. फ्लेक्सिबल मतलब जिधर की साइड पानी बह रहा है चलो हम भी उधर चल रहे हैं. उसका ऐसा है, जिधर पानी बहेगा वो उधर की साइड को अपनी स्टेम को मूव कर लेगा. फाइन. इससे क्या होता है? वो सरवाइव कर सकता है. बहुत ज्यादा अगर पानी का फ्लो है तो वो इजीली सरवाइव करता है उसमें. फाइन. फिक्स प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट, इट इज क्लियर नाउ. द last is wait a minute, whose message is there? Annavatri. Wait beta, after when I will explain all the things then I will unmute you. आप कोई unmute नहीं होगा. First of all you have to listen me, then I will unmute you. Underwater plants means yes, anyone having aquarium at their home? Aquarium है किसी के पास में? Aquarium जिसमें fish रखते हैं. Message me in the chat box if anyone having aquarium. एक्वेरियम बेटा जिसमें फिश को रखते हैं. फिश का जो मतलब घर टाइप का होता है. देखो मैम ने एक पिक्चर भी शेयर करी है एक्वेरियम की. शिवांश इज सेइंग आई हैव. शिवांश वेट अ मिनट, लेट मी कम टू यू. ओके फाइन शिवांश, अभी हम बाद में आपका एक्वेरियम देखेंगे. फाइन बेटा. जो यस शिवांश, वेयर यू हैव एक्वेरियम? Your voice is not coming, Shivansh.
Very less voice is coming. You can message me in the chat box. Vani is having, and yes, Arush is having, Shridhanya. बेटा मेरा पॉइंट ये है एक्वेरियम से रिलेटेड, देखो जो हम एक्वेरियम में फिश को रखते हैं तो हम वहां पर कुछ प्लांट्स भी रखते हैं. यस, प्लांट मीन्स उसके अंदर वाटर के अंदर कुछ प्लांट्स होते हैं. दीज प्लांट्स आर अंडर वाटर प्लांट्स. these plants have long ribbon like and narrow leaves. देखो आप यहाँ पे एक बेटा मिनट, अगर ये पिक्चर बड़ी हो सकता है तो everyone see here in this picture. देखो बेटा ये देखो ये these are the hydrilla, इनको हाइड्रिला बोलते हैं. एंड टैप ग्रास, these are underwater plant. ये क्या होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं. फाइन. यस, आपके इफ यू हैव सीन एनी एक्वेरियम, अगर आपके घर में किसी ने एक्वेरियम हो या फिर आपने स्कूबा डाइविंग की हो कहीं पर लाइक गोवा एंड ऑल, तो आप देखोगे अगर आप वाटर के अंदर जाएंगे, वाटर के अंदर होते हैं ये प्लांट्स. इनके क्या होते हैं, लटली. अभी पिक्चर मैम स्मॉल कर देती हैं. Yes, these plants have long ribbon-like narrow leaves. क्या होती है इनकी long ribbon-like narrow leaves? These leaves arises in have no stomata at all. जो इनके पास में बेटा no stomata, अंडर वाटर प्लांट्स के पास में कोई स्टोमेटा नहीं होता. ये कैसे? यस, अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा बेटा, अगर स्टोमेटा नहीं है तो ये ब्रीथ कैसे करेंगे? आरव अग्रवाल, अर्चित, स्टोमेटा का यूज क्या होता है? मैम एयर के काम आने में, मैम ताकि ब्रीथ वो एयर करने में. हाँ, अगर देखो बेटा अगर उसके पास स्टोमेटा नहीं है तो वो ब्रीथ कैसे करेगा? थर्ड पॉइंट इज दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस. कैसे ब्रीथ करते हैं? दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस. और जो अंडर वाटर प्लांट होते हैं एक्वेरियम में, हम इसको इसलिए भी रखते हैं बिकॉज these plants clean the water by removing the carbon dioxide out by aquatic animals like fish and turtles. Examples are hydrilla, tap grass. Examples क्या है अंडर वाटर प्लांट के? अर्नावत्री, examples of underwater plant. Ma'am, hydrilla and टेप ग्रास. टेप से आप याद कर सकते हो. विहान, Yes, ma'am. अंडर वाटर प्लांट बेटा कैसे ब्रीथ करते हैं? दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी. यस, दे हैव नो स्टोमेटा. के पास में कोई स्टोमेटा नहीं होता, सो ये कैसे? Ma'am, like fish breathe. नहीं, फिश, हाँ फिश भी अपनी स्किन से ब्रीथ करती है. बेटा मीना गिल्स से ब्रीथ करती है बेटा फिश तो. यस, और बेटा एक और बेनिफिट होता है अंडर वाटर प्लांट का. हम एक्वेरियम में रुद्रांश अंडर वाटर प्लांट को इसलिए रखते हैं बिकॉज वो क्या करते हैं, लाइक फिश ब्रीथ करेगी तो फिश ब्रीथ आउट क्या करेगी? विच कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करेगी ना फिश. सिद्धांत, आरव, वरदान, ध्रुव. हाँ ध्रुव, फिश जब ब्रीथ करेगी तो वो क्या ब्रीथ करेगी? ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो प्लांट्स होते हैं अंडर वाटर प्लांट्स, ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं. इससे क्या होता है? फिश और एनिमल्स इजीली सरवाइव कर सकते हैं वाटर में. फाइन. Examples are hydrilla and tape grass. Now everyone, any problem in fixed plant, floating plant or underwater plant? और जो ये प्लांट्स होते हैं अंडर वाटर प्लांट्स, ये कैसे ये ना बहुत ज्यादा क्लस्टर्स मीन्स एक साथ, बहुत सारे एक साथ क्लस्टर में निकलते हैं रूट से, गुच्छा बना के. क्लस्टर का मीन्स क्या होता है? बहुत सारे एक साथ में. अगम. Fine, now I will ask one by one. Samagra is raising hand. Okay, ma'am. बेटा, wait a minute, Samagra. Yes, wait a minute, Samagra.
Anyone having any problem in this? किसी को कुछ समझ नहीं आया हो? अंडर वाटर फ्लोटिंग, ये समग्र बोलो बेटा. अंडर वाटर प्लांट्स ब्रीथ कैसे करते हैं मैम, समझ में नहीं आया था. थ्रो देयर बॉडी सरफेस, अपनी जो बॉडी होती है उसकी सरफेस से. ओके. दे हैव नो स्टोमेटा, उनके पास स्टोमेटा नहीं होता, तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं? थ्रो देयर बॉडी सरफेस. फाइन. रुद्रांश इज रेजिंग हैंड. यस यस रुद्रांश. मैम जो अंडर वाटर प्लांट होते हैं वो ब्रीथ कैसे करते हैं? थ्रू देयर बॉडी सरफेस, जो उनकी बॉडी होती है, लाइक देखो जो इसकी बॉडी होती है प्लांट की, इसकी सरफेस, अपनी सरफेस से. सरफेस मीन्स सतह, मीन्स स्किन बोल सकते हैं आप लोग. फाइन. उससे ब्रीथ करते हैं. फाइन. बिकॉज देखो बेटा, आपने देखा होगा ये कैसे है, बिल्कुल एक थ्रेड लाइक है. ये जो हाइड्रिला होता है, टेप ग्रास होते हैं, मीन्स ये लंबे से होते हैं और इसके पास क्या होते हैं, छोटे छोटे छोटे. इसके पास लीव्स तो होती ही नहीं है. स्टोमेटा होगा भी किधर? स्टोमेटा लीव्स में होता है ना प्लांट्स की. अब इसके पास तो लीव्स ही नहीं है. फाइन. नाउ आई विल आस्क वन बाय वन. Arav is like, oh my god ma'am, sleeping, I want to sleep. Wait a minute. Now I'll ask. Everyone look at here. Give two example of fixed plants. Everyone message me in the chat box. Sujay ma'am, I have a problem. Okay. Everyone message me in the way. Two example, not one. Ahana, message karo jaldi se. I'm not getting your message. Ma'am, I have Chaitanya, right answer. Samag, right. Yes. in the of the aquatic plants or the examples of all the plants, I don't know. Why? Ma'am, problem. ओके फाइन. फिक्स प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं बेटा. फिक्स प्लांट, लोटस. क्या होगा फिक्स प्लांट का एग्जांपल? लोटस एंड वाटर लिली, बिकॉज दे हैव रूट्स फिक्स टू द पॉन्ड. लोटस एंड वाटर लिली इज द एग्जांपल ऑफ द फिक्स प्लांट. नाउ इट इज क्लियर. नाउ मोर आई एम टेलिंग यू हियर. नाउ फिक्स प्लांट और कौन से थे? फ्लोटिंग प्लांट. वेट अ मिनट. फ्लोटिंग प्लांट, इसका एग्जांपल है यस डकवीड. डक से याद कर सकते हैं आप. डकवीड, डकवीड एंड वाटर लेटस. Water hyacinth. दिस वन. यू कैन सर्च इन योर गूगल ऑल्सो कि ये दिखते कैसे हैं. फाइन. अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम कितने अजीब अजीब से नेम्स बता रही हैं. हाउ दे लुक्स. सी पार्ट इज which plant we were talking about? Floating figs and underwater. Underwater के examples क्या हैं? Hydrilla. Hydrilla. It is hydrilla. Hydrilla and tape grass. Ma'am, the spelling of hydrilla is double H. Oh नहीं, H, single H. Hydrilla and tape grass. You can note in your science notebook also this. Ma'am, you will send it. Yes, I will send you, but remember it beta for your yes everyone. Oh my god, 40 messages. Let me check the messages. Yes, ma. Yes.
Seerath, what happened with Seerath? I am coming to you. Alisha. Everyone has written the examples. Seerath, wait, coming to you. I know you are having problem. Sujay, you also having problem? Bolo beta. Sujay. Wait a minute. Yes, now you can speak. No. You were saying, na, ma'am, I am having problem. Okay, fine. Seerath, you are not there. I don't know where are you. What happened, Samag, now to Dhruv and Samag? Yes, Dhruv. टेरेस्ट्रियल प्लांट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है Okay, will okay, fine. बोलो. मैम जो राइजोफोरियड मार्शी एरियाज में प्लांट होता है हाँ जी. मैम वो सॉइल में फिश कैसे रहता है जबकि उसकी रूट्स तो बाहर होती हैं बेटा कुछ रूट्स तो अंदर भी होती होंगी, ऐसा नहीं है कि सारी रूट्स बाहर हो जाती हैं. फाइन. Now who was there? Samagr, yes. And this you will send on Edunex. Yes, beta, I will send you in the Edunex. Everyone, now we have, yes, Arab Agarwal, yes, beta, Vihan, okay, fine. Now one more topic is left, then your chapter will be finished. Let me discuss that on, yes, wait a minute. प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली. ग्रास फैमिली के प्लांट्स के बारे में आपको लास्ट में डिस्कस करना है. यस. Plants of the grass family are useful. Yes, mute yourself, everyone. Plants of the grass family are useful to us in many ways. Cereal plants like wheat, rice, jowar, bajra, oats provide food for the human and fodder for animals. मीन्स ग्रास फैमिली मतलब आप लोगों ने बेटा व्हीट या फिर राइस का मीन्स आपने कोई फील्ड या खेत देखा होगा, वो ऐसे बिल्कुल ग्रास के टाइप में लगते हैं ना. Yes or no? Have you seen wheat का कोई फील्ड देखा हो या फिर राइस का जहाँ पे राइस होता है, चावल. Wheat means गेहूं. नहीं देखा आप लोगों ने? Very nice. Anyone have you seen? They are like grass. They belong to the grass family. Sugar is obtained from sugarcane plant. Everyone know that. Sugar कहाँ से obtain होती है बेटा? Sugarcane से. Bamboo plants are actually gained grass. जो bamboo plants होते हैं, they are gained का means बहुत बड़े plants होते हैं. Vihan is saying yes, I have seen. Aditri, yes, very nice. Yes, most of you have seen बेटा. आपने देखा होगा generally. लाइक गेहूं का वो क्या बोल सकते हैं आप, गेहूं का फील्ड मीन्स खेत, गेहूं का, चावल का. दे आर लाइक दे बिलोंग टू द ग्रास फैमिली. नाउ बैम्बो प्लांट कैसे यूजफुल होता है? बैम्बो इज यूज्ड बास्केट्स, चेयर, मैट्स, कर्टेन्स, टॉयज एंड हट्स. आपने देखा होगा आपके घर में मैट्स होती हैं. मैट्स जो बनी हुई होती हैं वो बैम्बो से बनी होती हैं. जो बास्केट्स होती हैं, फ्रूट बास्केट जो अब होती हैं, यस और नो? फ्रूट बास्केट हो गई, आपके टॉयज हो गए, ये किससे बने होते हैं? बैम्बो प्लांट, बैम्बू. नाउ पेपर वाज फर्स्ट मेड बाय द पीपल ऑफ इजिप्ट फ्रॉम अ ग्रास कॉल्ड papyrus से बना है पेपर. From papyrus comes from the wood paper. Various kinds of grasses are there. Yes, ग्रास फैमिली में बेटा आपको बस यही याद रखना है कि सीरियल्स होते हैं, बैम्बो, शुगर एंड व्हाट इज देयर, पेपर कैसे आया था? किसी कोई इजिप्ट में पीपल थे, मीन्स कोई पर्सन था इजिप्ट का, उसने पाइपरस ग्रास से पेपर. आपको पता है पेपर कैसे बनता है? एनीवन नो हाउ टू? ये जो पेपर होता है बनता कैसे है?
प्लांट से बनता है पेपर. हाउ पेपर जो बनता है. ओके, नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू वन वीडियो कि प्लांट पेपर बनता कैसे है. फाइन. नाउ हु विल टेल मी अबाउट प्लॉटिंग प्लांट. रेज योर हैंड. प्लॉटिंग प्लांट के फीचर्स. ध्रुव इज रेजिंग. यस ध्रुव. मैम स्पीक फास्ट. सोचो जल्दी से, क्या बताया था मैम ने फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में. आरुष इज रेजिंग हैंड. एंड okay, fine, you are blind. Oh, no problem. Let me ask from someone else. Who can tell me about floating plant? पहला वर्ड तो इजीली आपको उसके नेम से ही सजेस्ट हो रहा है. फ्लॉट करते हैं वाटर में. यस, आहाना इज रेजिंग हैंड. आहाना के अलावा कोई रेज हैंड कर ही नहीं रहा है. आई किससे पूछूं मैं? Ma'am, I know फ्लोटिंग प्लांट. Ma'am, I know one sentence only. ओके फाइन. Ma'am, should I tell? Yes, very tell very fastly. It floats on water. That is I'm saying ना. पहला वर्ड तो आपको इसके से देखो बेटा, दोबारा देख लो एक बार. Everyone repeat. These plants are light. देखो बेटा, प्लॉट करना है वाटर को, वो प्लांट को वाटर में. तो वो प्लॉट कोई चीज कभी करती है जब वो बहुत ज्यादा लाइट होती है. लाइट होती है, स्पॉन्जी होती है, तभी तो वो प्लॉट कर पाएगी वाटर में. अगर सपोज करो, यस ध्रुव, आपने कोई भारी सी, लाइक आपने कोई मेटल की चीज पानी में डाल दी, मेटल की है, तो वो फ्लोट करेगी वाटर में? नहीं करेगी, बिकॉज वो तो बहुत ज्यादा हैवी है. तो वन फीचर क्या होगा फ्लोटिंग प्लांट का? वो बहुत ज्यादा लाइट होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं. व्हाट? लाइट वेट एंड स्पॉन्जी. दीज प्लांट्स. और देखो बेटा, वो पूरी वाटर की सरफेस पर होते हैं. फाइन. डकवीट प्लांट जो होता है पूरी वाटर की सरफेस पे होता है. फाइन. तो वो क्या होता है, वो वाटर को वो जो वहां पे एनिमल्स होते हैं जो पॉन्ड्स के नीचे रहते हैं, उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हीट ऑफ सन. देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एक डकवीट प्लांट की पिक्चर दिखाते हैं. ओके, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन दैट डकवीट प्लांट की पिक्चर? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट. डकवीट प्लांट देखते हैं हम लोग रियल में कैसा होता है. डकवीट. वेट अ मिनट, मैम निकाल रही हैं. इन द पिक्चर here, everyone look at the here. देखो बेटा, बहुत सारी इमेजेस आ गई हैं. ये देखो कैसे प्लॉट कर रहा है वाटर में. पूरे सरफेस के, वाटर के सरफेस को पूरा कवर कर लेता है. दैट इज, देखो ऐसे पूरा पॉन्ड में लाइक दिस. तो इससे क्या होगा, जो इसके नीचे एनिमल्स होते हैं, जो वाटर में एनिमल्स होते हैं, इसको क्या प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हीट ऑफ सन. एवरीवन इज गेटिंग द पिक्चर्स? Say something, do thumbs up. No, nothing. Ma'am, Yes, ma'am, these are duckweed plants. yes. These are duckweed plant. देखो ये here. बेटा आप लोगों ने देखा भी होगा, मैम ने भी देखा है. आपने पॉन्ड देखा है? पॉन्ड के ऊपर ये बहुत सारे ओरे होते हैं. No. फाइन. अभी आपको और कौन सा प्लांट देखना है, जल्दी बता दो. एनीवन? Ma'am, lotus. लोटस तो सबने देखा है बेटा. एनीथिंग एल्स? मैसेज में इन द चैट बॉक्स. विच प्लांट? डकवीड हो गया. और कौन से प्लांट्स होते हैं मैम ने कौन कौन से बताए हैं? डकवीड हो गया. वेट अ मिनट. और वाटर लेक्टस देख लेते हैं एक बार. वाटर सी हियर, दीज आर वाटर लेक्टस. देखो ये भी प्लॉट कर रहे हैं वाटर में. एवरीवन, these are water lectus plant. Fine. Now lotus plant, you want to see lotus plant?
lotus plant is like this. Lotus plant, देखो, it is very beautiful. See here, these are lotus plant. Now beta, lily plant, what, how it looks, lily plant, everyone's mind in yes, what, oh sorry, water lily plant लगा करना पड़ेगा. Wait a minute. See here, water lily plant, it is a water, these are of different colors, that's why it is showing. That is water lily plant. Everyone is like, oh my god, okay, water lily, water हियांशे देखना चाहती हैं, सिद्धिम, okay, we will see it. अजीब सा नेम वाला है प्लांट, देखते हैं अभी. See बेटा, water hyenic. See here, it is looks like that. Are you able to see, Vihan? Do thumbs up. Agam. And any other left? Hydrilla देखना है आराध्या को. Okay, fine. Hydrilla, ma'am will show you hydrilla. How hydrilla looks. Beta, it's look like this, hydrilla. Underwater plant. ऐसे घास की तरह होता है ये. Fine. Hydrilla. Anything else left? Hydrilla भी देख लिया अभी आप लोगों ने. Anything else? Okay, Shreyas is saying tape grass भी देखना है मैम. सब देख लो बेटा आज आप. Everyone, yes, tape grass. ये देखो, tape grass is like this. ऐसी दिखती है tape grass. Fine, everyone. Now picture is clear in everyone's mind. Now happy faces. सारे plants आप लोगों ने देख लिए. Fine, and now your chapter is completed. Learn it. I will share you the PPT of this second part. First part की already सबके पास में है. Second part की मैं आज send कर दूंगी. Fine. अहाना, ये क्या हो रहा है ये? Now, anyone having any query? आज तो मैम ने पिक्चर्स भी दिखा दी आपको प्लांट्स की. कोई प्लांट्स आप लोग को देखना हो? यस. बहाना इज सेइंग मैम हाइड्रिला इज नॉट गुड प्लांट. अच्छा बेटा, सारे प्लांट्स बेटा अच्छे होते हैं. फाइन. बेटा मिनट. हु इज रेजिंग हैंड? एनीवन हैविंग एनी क्वेरी? बेटा आप कोई प्लांट का नेम सुनते हो, आपके माइंड में होना चाहिए दैट कि उसकी इमेज कैसे दिखती है. यस और नो? है ना, आपके माइंड में आता होगा कि मैम ने ये प्लांट तो बता दिया, ये दिखता कैसे होगा रियल में. सो आप क्या कर सकते हो बेटा, गूगल करके पिक्चर देख सकते हो. मैं यस अन्ना भी सेइंग यस नाउ. Ma'am, excuse me. Ma'am, where you will check the pictures? पिक्चर्स बेटा, पिक्चर्स मैंने ऑलरेडी आपकी पीपीटी में पेस्ट कर रखी है. अगर आप देखनी है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. अभी मैम ने गूगल पे. हाँ बेटा, Share this chapter where you will send the PDF of this chapter. इन एडोनेक्स आई एम शेयरिंग बेटा. एडोनेक्स पे शेयर हो रही है. एडोनेक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं. फाइन. मैम आप हमें उसका नाम स्पेलिंग में बता दीजिए. किसका बेटा? एडोनेक्स. किसका? ईडी. बेटा आपके पास अनावत्री, आपने अभी एडोनेक्स डाउनलोड नहीं करना है? अन्ना, No ma'am, I have not done.
Yes, ma'am. I have not downloaded yet. Okay. Why बेटा? All your homework are coming through this app only. आप homework नहीं कर रहे हो फिर इतने time से? हाँ? Your class teacher ma'am is? Ma'am, Vishali ma'am. Okay, you have Vishali ma'am or my number. You can call or WhatsApp me. We will tell you how to download the Adonex app. Okay, ma'am. Fine. And everyone, beta, download the Adonex app. Your homework is coming through it. Or now your exams are also coming. So do your homework regularly. Sherwin, any problem, beta? Yes. Now I think time is over. That's why you are doing like this. I have to go. Fine. Yeah, better read the chapter at your home. If you have any query, then ask in the next class. Fine. Bye bye. Bye 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 bye.
स्वर में अंग और है, ठीक है। तो बच्चों ये अंग जो है, अंग को हम क्या कहते हैं? अंग, आहा और चंद्र बिंदु। ये जो वर्ण है बेटा, इनका स्थान जो है वो स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आता है। जब भी ध्यान रखिए, ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आता है। वो कैसे आता है वो अभी आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम अंग को लेके चलेंगे। इसको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं बेटा? अनुस्वार। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है ना? नाक से होता है। जैसे हमने लिखा हंस, हंस। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपका प्रोनाउंस होगा हंस, ठीक है। ऐसे ही इसको हम क में लगाएंगे और लिखेंगे क, कंस, ठीक है। प्रोनाउंस करिए तो नाक से स्वर निकल रहा है, कंस, हंस, ठीक। और जंगल, जंगल। जब आप इसको बोलेंगे तो क्या क्या लगेगा पढ़ने में? जंगल। हंस, कंस, जंगल, गंगा, ठीक है बेटा, गंगा। ओके। तो ये जो हमने मात्रा लगाई है, ये कौन सी मात्रा कहलाएगी? अनुस्वार, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ण है अ, अंग, अह और ये जो वर्ण है, इनका जो उच्चारण होता है, स्थान जो है और उच्चारण जो होता है वो स्वर के बाद होता है और व्यंजन से पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हंस, तो ये स है ना, स है ना। ह और स के बीच में आपका उच्चारण हो रहा है अंग की मात्रा का, ठीक है, व्यंजन से पहले, ठीक है। व्यंजन से पहले अंग की मात्रा का उच्चारण हो रहा है हंस। स के बाद नहीं हो रहा, स व्यंजन से पहले हो रहा है। जो बाद का व्यंजन है उससे पहले होता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि इन मात्राओं का जो भी वो है उससे पहले ही, व्यंजन से पहले इसका उच्चारण किया जाता है, ठीक है बेटा। तो अनुस्वार की मात्रा समझ में आ गई। अनुस्वार, अंग की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं। अगला आता है हमारा विसर्ग। आहा की मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग, इसका प्रयोग व्यंजन के साथ कैसे करते हैं? इस प्रकार से, अतः, ठीक है। इसका जो उच्चारण है वो ह की तरह होता है, अतः, ठीक, ठीक है बेटा। अतः, ऐसी और भी शब्द है, पुनः, प्रातः, ओके, प्रायः, ठीक है बेटा। हंस, कंस, जंगल, गंगा, ये तो हो गए हमारे अनुस्वार वाले शब्द। अतः, पुनः, प्रातः, प्रायः।
ये हमारे कौन से शब्द हो गए? विसर्ग वाले। इनका जो अनुस्वार का जो आपका उच्चारण होता है नाक से होता है, हंस, कंस, ठीक है। और विसर्ग का उच्चारण ह करके किया जाता है, ठीक है, ह करके किया जाता है। अब अगला आता है चंद्र बिंदु। इसको क्या कहते हैं हम? अनुनासिक। अनुनासिक से आपको पता चल रहा होगा, नासिक मतलब, नासिका मतलब होता है नाक। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा ना, नासिका, नाक मतलब नाक और गले से जो भी ध्वनि निकलती है, वो चंद्र बिंदु की जो ध्वनि है वो नाक और गले से निकलती है। जैसे हमने इसका प्रयोग किया किसी शब्द के साथ, बात, ठीक है। नाक और गला दोनों का प्रयोग करते हैं इसका उच्चारण करते समय, दांत, दांत, ठीक है। ऐसी दूसरा शब्द है चांद, चांद, ठीक है। कांटा, कांटा, ओके। आंगन, वेरी गुड। कांच, अदिति ने अभिधान किया है कांच। कांच भी अनुनासिक वाला ही शब्द है, ठीक है बेटा। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अंक की मात्रा वाले शब्द क्या कहलाते हैं। अंक की मात्रा को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार, आहा, विसर्ग, चंद्र बिंदु, अनुनासिक, ठीक है। अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। अंक की मात्रा को क्या कहा जाता है? अनुस्वार। नाच नहीं होगा बेटा, ना नाच नहीं होगा। आहा, विसर्ग, नाच जब लिखते हैं तो प्रॉपर केवल ओनली आ की मात्रा की का प्रयोग करते हैं और च लिख देते हैं, बस। 5 हो सकता है। चंद्रबिंदु, अनुनासिक, आपने क्लास 3rd में भी ये पढ़ा था। अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, उनसे बनने वाले शब्द, अनुस्वार से हंस, कंस, जंगल, गंगा। विसर्ग से बनने वाले शब्द अतः, पुनः, प्रायः, प्रातः, प्रायः। अनुनासिक, दांत, चांद, कांटा, आंगन। ओके बेटा, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो बच्चों, स्वर में ये 2 और होते हैं, ठीक है। स्वर 11, 12, 13 पूरे हमारे 13 वर्ण होते हैं। इन दोनों को अलग से पढ़ा जाता है और उनके साथ चंद्र बिंदु को भी पढ़ा जाता है। क्यों? यस बेटा, पाँव भी सही है अदिति। इनको भी, इसको भी पढ़ा जाता है क्योंकि ये भी स्वर का कार्य करता है। व्यंजनों में स्वर का कार्य करता है, व्यंजनों में लगा के, ठीक है। तो आ, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक भी इसके अंतर्गत आते हैं, स्वर के अंतर्गत, ठीक है। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो ये तो हो गई हमारे स्वर से संबंधित कुछ अन्य मात्राएं, ठीक है। और जो नॉर्मल मात्राएं हैं उनके बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है। एक बार हम उनको भी देख लेंगे। देखिए, ये आपकी पाठ्य पुस्तिका है जिसमें स्वर की मात्राएं दी हुई हैं, है ना। इनका एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, ध्यान से देखिए। आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन व्यंजन में इसका प्रयोग होता है। बिना आ के स्वर के व्यंजन पूर्ण नहीं होता, ठीक है। इसमें अ का स्वर जरूर होता है व्यंजन में। आ की मात्रा इस प्रकार की होती है। ई की मात्रा
व्यंजन के आगे से लगती है, बड़ी की मात्रा व्यंजन के पीछे से लगती है, उ पाँव में लगती है व्यंजन के, बड़े उ की मात्रा इस प्रकार से लगती है, ठीक है। री की मात्रा इस प्रकार से लगती है, नीचे लगाई जाती है इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे प्रयोग भी किया गया है, ये देखिए क कृ, री की मात्रा इस तरीके से। ओके अदिति, ओके। ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, ठीक है। बाकी इसके जो आगे के जो स्वर हैं वो मैंने आपको अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्रबिंदु में बताया। नाउ आई वांट टू अनम्यूट सीरत। यस बेटा, यस सीरत। मैम वो जो आप बुक में से दिखा सीरत, रहे डू यू थे। वांट टू आस्क समथिंग? मैम यस। हाँ जी, हाँ मैम बेटा आप बुक बोलिए। नोटबुक में से जो क्वेश्चन, मैम जो आप नोटबुक में से समझा रहे थे वो क्या आप एक बार समझा देंगे? हाँ, आप थे नहीं क्या बेटा? आप थे नहीं अभी? देखिए, चलिए मैम फिर से व्हाट? समझा देती हूँ। मैम बस एक हाँ बार उठा के फेंक दिया। अरे कुछ नहीं आता, सुन रही है। हाँ हाँ बेटा बताती हूँ। ओके ओके, चलिए। अब बोलो। ओके बेटा, देखिए स्वर, स्वर के जो हमारे स्वर अ तक के स्वर होते हैं 11, उसके आगे भी जो स्वर हैं जिनको हम स्वर में ही काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, उनकी अंग, अंग होता है, आहा होता है और चंद्र बिंदु होता है। चंद्र बिंदु हमारे स्वर के साथ में लिखा नहीं जाता, लेकिन ये भी एक स्वर है चंद्र बिंदु, ठीक है। तो बच्चों इनको हम अलग से पढ़ते हैं, क्यों? इनका नाम अलग है। जैसे अंग की मात्रा को हम अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। अनुस्वार हम इसको कहते हैं, इसका जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है। जैसे हमने हा में अंग की मात्रा लगाई और सा, हंस, हंस, कंस, जंगल, गंगा। जब आप इसको बोलेंगे तो नाक से अंग का स्वर आएगा, ठीक है। हंस, कंस, जिनको मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं हो रही है बेटा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नेटवर्क इशू हो सकता है। ओके, यस रुद्रांश, ओके। इसका अंग अनुस्वार का जो उच्चारण है वो नाक से होता है, हंस, कंस, जंगल, गंगा, ठीक है। अगला आता है अह, अह को हम क्या कहते हैं? विसर्ग। यस आरव गर्ल, विसर्ग, आहा की मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं। जब हम इसका प्रयोग व्यंजन के साथ करते हैं तो ह का स्वर आता है, अंत व्यंजन के अंत में ह का स्वर आता है। जैसे अतः, पुनः, प्रातः, प्रायः, ठीक है। अगला है हमारा अनुनासिक, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु हम लगाते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक जो है इसका जो उच्चारण है वो उच्चारण नाक और गले से किया जाता है। चंद्र बिंदु का उच्चारण नाक और गला दोनों से किया जाता है। जैसे दांत, चांद, कांटा, आंगन। ओके बेटा, नाउ इट्स क्लियर। रुद्रांश, yes रुद्रांश, I am unmuting you but you are not able. Unmute yourself from your side.
यस रुद्रांश। रुद्रांश। यस हाँ जी बेटा बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है? यस, अब आ रही है। ठीक है ओके। वो बेटा नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, और जो शो कर रही हूँ वो शो हो रहा है, मैंने आपने लिख भी लिया है, मैंने देखा। वेरी गुड। ओके नाउ मैंने मात्राएं भी आपको बताई अभी। वो तो मात्राएं सभी बच्चों को पता है। ठीक है, तो इन मात्राओं को हम जानते हैं आ ई उ री ए ए ओ औ। ठीक है, इनको हम प्रयोग करना भी अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप जो है क्लास 4th में पढ़ते हैं, है ना, तो आपको आता है ये। ठीक है, ये स्वर की मात्राएं हैं और व्यंजन के साथ में इस तरह से लगाई जाती हैं और इनके शब्द इस तरह से बनाए जाते हैं, सभी को पता है। ठीक है, वी यस यस विहान। मैम वो चांद बिंदी को क्या कहते हैं? है मैम वो आप अभी बता रही थी मैम। चंद्र मैम बिंदु को, उसमें मैम यस चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। चंद्र बिंदु को अनुनासिक। अनुनासिक, देखिए लिखा हुआ है। हाँ, अनुस्वार अनुनासिक विसर्ग अन की मात्रा, विसर्ग आहा की मात्रा और चंद्र बिंदु अनुनासिक। अनुनासिक। ठीक है ओके। चलिए थोड़ा सा पूछ लेते हैं कुछ बच्चों से। कुछ बच्चों से पूछ लेते हैं कि बताइए, अनम्यूट कर रही हूँ मैं। ए लेटर, आराध्या मित्तल। आराध्या यस मैम। बेटा यस बताइए। यस बेटा बताइए, अंक की मात्रा को क्या कहते हैं? अंक की मात्रा को हाँ मैम कई बच्चों ने नोट भी कर लिया होगा। मैं जो भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ उसको लिख लिया करिए। अनु ठीक है बेटा? नहीं, अंक की मात्रा को हाँ बेटा क्या बोलते हैं? अनुस्वार अनुस्वार। वेरी गुड। अंक की मात्रा को अनुस्वार और बेटा चंद्र बिंदु को मैम चंद्र बिंदु को अनु मोदित जोशी का आंसर आया अनुस्वार, अनुनासिक अनुनासिक। वेरी गुड ओके। और विसर्ग को क्या कहते हैं? विसर्ग यस बेटा, विसर्ग को मैम विसर्ग किसकी मात्रा है? मैम मैम प्रातः। हाँ प्रातः हमें तो लगती है, लेकिन किसकी मात्रा है? कौन से स्वर की मात्रा है? आहा किसकी मात्रा है? आहा की। ठीक है ओके बेटा। नाउ आई विल आस्क आरव अग्रवाल। आरव, आरव
आरव आपने अपना कैमरा और ऑडियो दोनों अपने साइड से ऑफ कर रखा है। आरव अग्रवाल, यस। आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट यू बेटा। आरव कैमरा ऑन कीजिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल। ना आरुष, मैम यस बेटा। अंक की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? मैम विच अंक की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? अंक की मात्रा। अनुस्वार ओके। चंद्रबिंदु, अनुनासिक ओके। और आहा की विसर्ग मात्रा? वेरी गुड। बाकी बच्चे सुन रहे हैं ना? आपका भी आपको भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नाउ अभी 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 बेटा, एम आई ऑडिबल अभी? आई थिंक ही इज डिस्कनेक्टेड अभी। ओके आदित्रि, यस बेटा। चंद्रबिंदु को क्या बोलते हैं? कौन सी मात्रा क्या बोला जाता है चंद्रबिंदु को? अनुनासिक। चंद्रबिंदु को क्या कहते हैं? अनुनासिक। ओके। और अंक की मात्रा को? अनुस्वार। अनुस्वार। और आह की मात्रा को? विसर्ग। वेरी गुड। ओके। नाउ आई विल अनम्यूट another A. Arav Agrawal, Pita, mute yourself from your side. Arav, Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, yes. बेटा। अंक की मात्रा बताइए। अंक की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? मैम अनुनासिक। अंक की मात्रा को अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलिए। अनुस्वार। अनुस्वार। और चंद्रबिंदु को? चंद्रबिंदु को क्या बोलते हैं? चंद्रबिंदु को अनुनासिक बोलते हैं। बोलिए। आरव, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। आदित्य सिंह, यस मैम। यस बेटा। चंद्रबिंदु को क्या बोलते हैं हम? अनुनासिक। वेरी गुड। और अंक की मात्रा को? यस विहान। अंक की मात्रा को अनुस्वार क्या बोलते हैं? ओके। और आह की मात्रा को क्या कहते हैं? हाँ बेटा, आप नोटबुक वगैरह पेंसिल लेके बैठा करिए। जो मैं समझा रही हुआ करूँ ना, उसको राइट कर लिया करिए, सो दैट जब मैं कोई क्वेश्चन अगर पूछती हूँ तो आपको हेल्प मिल सके, है ना? ओके बेटा। अंक की मात्रा लिख लीजिएगा। अंक की मात्रा अनुस्वार, आह की मात्रा विसर्ग, और चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है आदित्य? ओके। आगम, नाउ योर टर्न। अभी तक तो रट गया होगा आगम को भी। आगम, ओपन योर कैमरा।
अगम ओपन योर कैमरा बेटा, कैमरा भी ऑफ कर रखा है आपने और अनम्यूट भी नहीं हो रहे हो मुझसे। यस अगम, एम आई ऑडिबल? अगम, unmute yourself from your side बेटा। Ma'am, I have unmute. ओके, अब मुझे आवाज आई है आपकी। चलिए बताइए, अंक की मात्रा को क्या कहा जाता है? अंक की मात्रा को क्या कहते हैं बेटा? फिर आपने म्यूट कर लिया खुद को। अनम्यूट योरसेल्फ। Excuse me, ma'am. यस बेटा। अगम, Yes, ma'am. अंक की मात्रा को क्या कहते हैं? Ma'am, स्वर्ग. अंक की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं। अंक की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार. और चंद्र बिंदु को? चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु अनुनासिक। ओके बेटा। Okay, ma'am. ओके नाउ आहाना। यस आहाना, एम आई ऑडिबल? आहाना, एम आई ऑडिबल बेटा? आहाना, speak बेटा। I'm not able to hear you. Yes आहाना, speak बेटा। आहाना, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। Okay, now I'm going to unmute next participant. अर्चित। अर्चित, यस मैम। बेटा अंक की मात्रा को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। ओके, चंद्र बिंदु को? अनुनासिक। ओके, और आहा की मात्रा को क्या कहते हैं? अनुनासिक। आहा, आहा की मात्रा। विसर्ग, क्या कहते हैं? विसर्ग। आहा की विसर्ग। मात्रा को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। विसर्ग। ओके अर्चित, वेरी गुड। नाउ आई एम गोइंग टू अनम्यूट अर्नव, अर्नवत्री। यस मैम। यस बेटा, बताइए अंक की मात्रा को अभी मैंने क्या बताया? अनुस्वर। ओके, और चंद्र बिंदु को? चंद्र बिंदु को अनुनासिक। ओके,
और आहा की मात्रा विसर्ग। विसर्ग। वेरी गुड अर्णव, इन बातों को ध्यान रखिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू अनम्यूट। I will take 5 minutes more. Don't worry. अभी काद्यान, अभी काद्यान बेटा। Yes, ma'am. अंक की मात्रा को क्या कहा जाता है? Ma'am, I have not listened whole. So, लेकिन बेटा अभी सारे बच्चे बता भी तो रहे हैं, वो भी तो आपने सुना होगा। अभी बच्चों ने बताया ना, वो तो सुना होगा आपने। चलिए ओके, अभी कोई दूसरा बच्चा बताएगा तब सुनिएगा। अभी का ध्यान, फिर मैं आपको फिर से अनम्यूट करूंगी। मुदेत बताइए बेटा, अंक की मात्रा को क्या कहते हैं? ma'am, मुदेत ओपन योर कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल। ma'am, अनुस्वार। हाँ अनुस्वार। ओके, और आहा की मात्रा को? मैम, विसर्ग। वेरी गुड। और चंद्र बिंदु को? अनुनासिक। वेरी गुड। अभी का ध्यान, आपने सुना मुदित ने क्या बताया? ओके, नाउ आई विल अनम्यूट। Next participant. Yes, Siddhant. Siddhant. Yes, ma'am. अनुस्वार को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार किसकी मात्रा है? अपोजिट पूछ रही हूँ अब मैं। अनुस्वार किसकी मात्रा है? Ma'am, your voice is not audible. अनुस्वार किसकी मात्रा है? नाउ ऑडिबल? Yes. बताइए, अनुस्वार किसकी मात्रा है? चलिए, आहा की मात्रा को क्या कहा जाता है? आहा की मात्रा को क्या कहते हैं? कुछ नहीं, आपने सुना, कुछ सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। Okay, everyone. Now time is over. Okay, बेटा. So आज मैं homework send कर दूंगी, ठीक है? So you will write your homework in your Hindi second notebook. Okay, बेटा. So next time I won't teach you grammar. Okay. Okay, ma'am. Who will take? Grammar. Who will take grammar period? Who will take? Who will take your grammar period? Nutan ma'am. Nutan ma'am will take your grammar lecture, okay? From Okay. next time. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. I'm leaving. Bye, ma'am. Bye. Bye. Bye.